Welcome to the online studies. In today's session, you are going to study about your subject Social Science of Standard 8, Chapter number 7, Environmental Changes. So, we have gone through to the explanation part. Now you are going to study about the exercise part of this chapter. In that, first one, choose the correct option. First question. Which of the following countries experiences maximum temperature? Options A. Iran, B. Brazil, C. Philippines, or D. Saudi Arabia. Correct answer is option D. Saudi Arabia. Second one. Which of the following countries experiences maximum cold? Options A. Norway, B. Russia, C. Iran, or D. Brazil. So correct answer is option A. Norway. In the first question they are asking about the maximum temperature, that is hot, and second one it is maximum cold. Now third one, which gas is most effective as a greenhouse gas? Options A. Oxygen, B. Hydrogen, C. Nitrogen, or D. Carbon dioxide. So correct answer is option D. Carbon dioxide. Now next one, fourth. How many tons of methane is produced by paddy cultivation? Options A. 15 crore, B. 12 crore, C. 7 crore, or D. 21 crore. So correct answer is option A. 15 crore. Next and last one. Fifth, when is Ozone Day celebrated in the world? Options A. 28th of October, B. 16th September, C. 1st of January, or D. 5th of June. So correct answer is option B. 16th of September. Now next one, fill in the blanks. In that first one, increase in the proportion of the dash gas has led to an increase in the global temperature. Answer is carbon dioxide. Next one, second, there has been an increase of dash degrees Celsius in the temperature of the earth in the last 100 years. Answer is 0.6 degree Celsius. Now last one. Next one, third, proportion of nitrous oxide has increased from 270 ppm to dash ppm. Answer is 319 ppm. Next one, fourth, CFC gas is related in maximum due to the use of dash appliances. Options, correct answer is electronic. Okay. Fifth one, last, it is necessary to make dash use of resources to check the increase in the global temperature. Answer is judicious. That means जितना यूज़ हो उतना ही रिसोर्सेज को यूज़ करना. उससे क्या होता है, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे. Getting it? Next one, true or false, and if the answer is false then you have to give the correct statement. In that first one, our environment is polluted due to the smoke from industries, factories and auto vehicles. Answer is true. Second one, the average condition of temperature, moisture and rain for a period of over 35 years is called weather. Answer is false. So correct statement, the condition of temperature, humidity and rainfall in a region at a particular point of time is called weather. Getting it? ये जो डेफिनेशन है वो क्लाइमेट का है, और सेकेंड जो ट्रू स्टेटमेंट है उसमें जो डेफिनेशन है वो कौन सा है, वेदर का. गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड, problem of climate change gas emerged due to reduction in greenhouse gases.
Answer is false. Obviously, why? Problem of climate change gas emerged due to the increase in greenhouse gases. कम हुआ इसलिए क्लाइमेट चेंज होता है, जो प्रॉब्लम है वो नहीं, वो इंक्रीज हुआ है इसीलिए. Now fourth one, the proportion of CO2 which was 275 ppm 100 years ago has increased to 350 ppm at present. So answer is true. Last one, beehives are disappearing fast due to global warming. Answer is true. beehives क्या होता है? जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है, ठीक है, उनके लिए एक शेप टाइप रहता है, ठीक है, उनके लिए वैसा घर बनाता है जहाँ पे वो शहद बनाते हैं, ठीक है. तो वो भी धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हट रहा है, डिसअपियर हो रहा है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एंड दैट फर्स्ट वन, व्हाट इज क्लाइमेट? आंसर इज द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर 35 years in a region is called climate. Getting it? जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो डेफिनेशन था वो किसका था? क्लाइमेट का. सेकेंड वन, what do you mean by greenhouse effect? Answer, countries with cold climate receive less heat from the sun. This hampers growth of plants and vegetables. That means जहाँ जो कंट्री में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है और उसी जगह पे लेस हीट जो सन से मिलती है, उसके वजह से क्या है, वो डायरेक्टली जो ग्रोथ है प्लांट्स और वेजिटेबल्स का उसके ऊपर इफेक्ट करती है. Thus, arrangements are made to conserve heat by having a roof sustain heat, which is created with the production of carbon dioxide and water vapor. So this is known as greenhouse effect, and this type of farming is known as greenhouse farming. पता चला ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत हो उसका अपोजिट चीज़ होता है. और सेकंड चीज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, उसके अंदर जो हम फार्मिंग करते हैं वो कैसे होती है, यहाँ पे वो समझाया गया है कि हम एक ऐसी रूफ बनाते हैं जो किससे बनती है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रूफ, वाटर वेपर. तो उससे क्या है कि जो वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं और उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस फार्मिंग. गेटिंग इट? नेक्स्ट वन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? आंसर सिंपल है, हर कोई जानता है, कॉमन, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अनइक्वल एंड continual rise in average temperature in Earth's climate dies to greenhouse effect. Certain gases trap infrared rays so that the temperature of Earth increased. The planet becomes warmer. Thus, if this effect is known as global warming. In short, जब अर्थ का टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग. वही चीज़ इसमें डेफिनेशन में बताई है, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट. अगर ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछते तो आपको सेम ही लिखना रहेगा, ठीक है. गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट डाउन द होम अप्लायंसेस ऑफ डेली यूज दैट एड टू ग्लोबल वार्मिंग. आंसर, television, air conditioners, tube lights, bulbs, computer, laptop, refrigerators, geyser, heaters, all type of vehicles like cars, buses, etc. And main thing, all kinds of phones, etc. are also a home appliances of daily that are added to global warming. So we have to try to stop excess use of everything that cause global warming. Fifth one, last, which country hosted the last world conventions to protect environment? Answer, the country that hosted the last world conventions to protect the environment was held at Copenhagen, that is on Denmark, in December 2009. Okay, यहाँ पे एक
फ़ोटो है जिसके अंदर बताया है कि वाटर हीटर जो है कितना ग्लोबल वार्मिंग में वो 18% जितना इफ़ेक्ट करता है, एयर कंडीशनर 6%, रेफ्रिजरेटर 5%, और ऐसे ही लास्ट में लाइटिंग एंड अदर अप्लायंसेस 30%। तो ये सब चीज़ें हाउस होल्ड में जो होम अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। सो लास्टली हमें क्या करना है, टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों का कम यूज़ करना है, ताकि जो प्रॉब्लम्स हम अभी फेस कर रहे हैं, गर्मी के अंदर बारिश पड़ना, बारिश के अंदर ठंडी आना, गर्मी लगना, तो ये सब क्या है, सब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, शॉर्ट नोट, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, हम डिस्कस कर रहे थे और उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। हमें ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आंसर में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा आते हैं तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट वन, रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज विच रिलीजेस CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ऐसी चीज़ें बंद कर देनी है जिससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड आवर हाउसेज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर के आसपास कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, फॉरेस्ट में अ नंबर ऑफ ट्रीज रहती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। फोर्थ वन, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, सबसे बड़ी चीज़ प्लास्टिक है जो बहुत हज़ारों साल तक वो डिकम्पोजिश नहीं होती, इसलिए हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, कंट्रोल पॉपुलेशन, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऐड बायोटिक इन फूड फॉर एनिमल्स, एंड लास्टली अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय यूजिंग ग्रीन और कैटल मैनर। तो ये सब अगर हम स्टेप्स ले तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी। उसके रिलेटेड भी बहुत कुछ इशू है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, जो हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड, डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। चेंजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन, जो ग्रोथ है, वेजिटेशन जिस हिसाब से प्रॉपरली उगना चाहिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड वल्चर्स आर डिसअपीयरिंग फ्रॉम अर्थ, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे अर्थ से गायब हो रहे हैं। नियरली 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस हैव बीन डिसाइडेड दैट इज़ मेल्टेड, ज़्यादा गर्मी है तो जो ग्लेशियर्स है वो भी धीरे धीरे पिघलने लग गए। अब उससे भी प्रॉब्लम क्या आएगी, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, एंड देन आफ्टर ऑलरेडी अप्रॉक्स 70% तो वाटर है, या वो और बढ़ेगा तो हम रहेंगे कहाँ पे। प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल रिसीव लेस रेन्स एंड दोज कैन सिटी रेनफॉल रिसीव हैवी रेन्स। एडवर्स इफेक्ट, ऑपोजिट इफेक्ट, जहाँ पे हमें बारिश की ज़रूरत है वहाँ पे बारिश होती नहीं है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे और ज़्यादा बारिश होती है। द सीजन साइकिल इज़ चेंजिंग, हम भी ये लाइव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। Salinity of soil in Gujarat is increasing, and lastly agriculture produce has declined sharply। तो ये सब क्या है, एडवर्स इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और ये सीरियस मैटर है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि हम वो सब चीज़ें यूज़ ना करें जिससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उसके साथ में जो ट्रीज है उसे हमें ग्रो करनी चाहिए। So this was the end of today's session with the exercise part and the chapter. I hope you have understand all the point. Till the next session, stay home, stay safe.